तो मोहर कोलाम थ्योरी, इसमें आप देख सकते हैं कि मोहर कोलाम थ्योरी इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल और डिस्क्राइब द रिस्पॉन्स फॉर ब्रिटल मटेरियल सच एज अ कंक्रीट या ट्रिपल पाइल्स टू शेयर स्ट्रेस एज वेल एज नॉर्मल स्ट्रेस। आपने यहाँ पे देखा कि मोहर कोलाम थ्योरी एक इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटल मटेरियल सच एज अ कंक्रीट या रिपल्स पील्स टू शेयर स्ट्रेस as well as normal stress. Most of the classical engineering materials somehow follow this rule in the least a portion of their shear failure envelope. Generally, the theory applies to materials for which the compressive strength far exceed the टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको क्लियर है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होता है इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल या स्ट्रक्चर टू विदस्टैंड लोड्स tending to reduce size as opposed to which withstand loads tending to elongate. टेंसाइल स्ट्रेंथ आई थिंक आपको पता है दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यूटीएस जो कि ऑफन शॉर्टेंड फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, टीएस अल्टीमेट स्ट्रेंथ या एफटीयू विद इन द इक्वेशंस इज क्या होता है इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एट द मटेरियल कैन विदस्टैंड वाइल बीइंग द स्ट्रेच या पुल आउट। इन जियो टेक्निकल energy, geotechnical energy is also known as the geotechnics or is the application of scientific methods and engineering applications, engineering principles to the acquisitions, interpretation and knowledge of materials for the earth crust and earth materials. It is used for shear strength of soils, shear strength of soils आप समझ सकते हैं यहाँ पर shear stress पता है आपको, shear strength पता है और that is a critical states and rocks at different effective stresses. In structural engineering की बात कर लेते हैं। In structural engineering is the used to determine failure loads as well as the angle of fracture या of a displacement fracture in concrete and similar materials. Coulomb's, this was Coulomb Augustin de Coulomb was a French military engineer and physicist. He is the best known as the eponymous discoverers of what is now called Coulomb's law. Friction, you don't know friction. What is the friction? Friction is the force of resisting the relative motion of solid surfaces. The Coulomb's friction hypothesis is used to determine the combination of shear and normal stress. Coulomb friction hypothesis is used to determine the combinations of shear and normal stress. नॉर्मल स्ट्रेस आपको पता है व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस, इट विद दैट विल कॉज अ फ्रैक्चर ऑफ मटेरियल। ये क्या निकाला है, दैट इज अ फ्रैक्चर ऑफ मटेरियल। मोहर सर्किल, दैट इज अ मोहर सर्किल, दिस वन इज द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ मोहर सर्किल एंड मोहर सर्किल इज इन्वेंटेड बाय द क्रिश्चियन ओटो मोहर, इज द 2-dimensional graphical representation of the transformation law of the Cauchy stress tensor. Mohr circle invented by the Christian Otto Mohr. It is a 2-dimensional graphical representation of the transformations law of Cauchy stress tensor. Mohr circle is used to determine which principal stress will produce the combination of shear and normal stress. Mohr circle is used to determine which principal stresses will produce this combination of shear and normal stress and the angle of the plane in which this will occur according to the principle of normality. Principle of normality में क्या कहता है कि solid mechanics state that if normal to the yield locus is constructed at the point of yielding, the strains that result from yielding are in the same ratio as the stress components of the normal. That is, according to the principle of normality, the stress induced at failure will be perpendicular to the line describing the fracture condition. नेक्स्ट हमें बताता है आगे कि इट्स कैन बी शोन द मटेरियल फेलिंग अकॉर्डिंग। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मोर सर्किल क्या है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, किस तरह से प्रिंसिपल स्ट्रेस को विल प्रोड्यूस द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस, और इसके बेसिक कंसेप्ट को आपको क्लियर हो रहा होगा। इट कैन बी शोन दैट मटेरियल फॉलिंग अकॉर्डिंग द कूलम्ब्स फ्रिक्शन हाइपोथेसिस विल शो द डिस्प्लेसमेंट इंट्रोड्यूस at a failure forming an angle to the line of fracture equal to the angle of friction. This makes the strength of material determined by comparing the external mechanical work.
introduced by the displacement and the external loads, the internal mechanical work introduced by the strain and stress at the line of failure by the conservation of energy. The sum of these must be 0, and this will make it possible to calculate the failure load of the construction. तो दिस वन योर मोहर्स कोलाम फेलियर क्राइटेरिया. यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हो. देयर हैव अ व्यू ऑफ मोहर सर्किल. इसको हम थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देते हैं. यू हैव टू दिस डायग्राम. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिस वन योर प्लेन, और यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 0 दिखाई देगा. ये 0 एंड यहाँ पे 0. तो यहाँ पे देख सकते हो 2 और 4 यानी दो का अंतर लिया है, 2 और 4. फिर यहाँ पर -2 -4 -6. फिर यहाँ पे एक्सेस से लिया गया 0 2 4. फिर -2 -4 6. फिर यहाँ पर सेंटर पे 0 2 4 ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर -2. तो यहाँ पे देखो जो यहाँ वैल्यू देते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस. यहाँ पे सिग्मा 1 हमारा दिस वन इज सिग्मा 1 एंड दिस वन योर सिग्मा 2 एंड दिस वन योर सिग्मा 3. सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3. दिस वन योर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3. आपने डायग्राम में यहाँ पे देखा. तो ये डायग्राम क्या बताता है? ये डायग्राम हमें बताता है व्यू ऑफ मोहर्स कोलाम फेलियर फील्ड सरफेस इन 3D स्पेस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है मोहर सर्किल फेलियर सरफेस इन 3D स्पेस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फॉर C = 2 एंड phi = -20 डिग्री. तो जो द मोहर कोलाम फेलियर क्राइटेरिया रिप्रेजेंट करता है लीनियर इन्वेलप that is obtained from a plot of the shear strength of a material versus applied normal stress. This relation is expressed as tau = sigma 10 phi plus c. यहाँ पर टाउ क्या है हमारा shear strength है और सिग्मा क्या है नॉर्मल स्ट्रेस है. c क्या है हमारा इज द इंटरसेप्ट ऑफ द फेलियर इन्वेलप विद द टाउ एक्सिस एंड 10 phi क्या है 10 phi इज द स्लोप ऑफ द फेलियर इन्वेलप. The quantity C is often called cohesion. So quantity C is called the cohesion. Cohesion is the component of shear strength of a rock or soil that is independent of the interparticle friction, and the angle phi is called the angle of friction. So compression is assumed to be positive in the following discussion. If compression is assumed to be negative, then sigma should be replaced with negative. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ़ 5 किलोग्राम 0 लेते हैं तो मोहर क्राइटेरिया रिड्यूस द ट्रेस्का क्राइटेरियन. अगर 5 किलो में 0 लेंगे तो मोहर कोलाम क्राइटेरिया रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस द ट्रेस्का क्राइटेरियन. और ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग 5 किलो 90 लेते हैं तो मोहर कोलाम मॉडल इस इक्विवेलेंट किसकी जगह रैंकाइन मॉडल. तो यहाँ पे आपने देखा स्टेटमेंट 5 किलो 0 पर मोहर कोलाम क्राइटेरिया रिड्यूस द ट्रेस्का क्राइटेरियन और 5 की वैल्यू अगर 90 ले रहे हैं तो मोहर कोलाम मॉडल इज इक्विवेलेंट टू द रैंकाइन मॉडल. हायर वैल्यू ऑफ 5 आर नॉट अलाउड. तो यहाँ 0 90 0 90. तो फ्रॉम मोहर सर्किल्स जैसे कि आपको बताया था मोहर सर्किल क्या है यहाँ पे देख सकते हैं. वी हैव सिग्मा = सिग्मा m - टाउ m sin phi एंड टाउ = टाउ m cos phi. तो यहाँ से टी एम की वैल्यू जो है आप निकालिए सिग्मा, यहाँ से इसको इधर कर देंगे, दीज आर द वैल्यू पुट आउट कर देंगे. तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी टाउ m = सिग्मा 1 - सिग्मा 3/2 और सिग्मा m = हो जाएगा सिग्मा 1 + सिग्मा 3/2. एंड सिग्मा 1 इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 3 इज द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस. सिग्मा 1 इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस and sigma 3 is the minimum principal stress. Therefore, the Mohr's Coulomb criteria may be expressed as tau m = sigma m sin phi plus c cos phi. So this from the Mohr's Coulomb criteria is applicable to failure on a plane that is parallel to the sigma 2 direction. So these are the basic dimensions Mohr's Coulomb failure criteria in 3 dimension. प्लस माइनस सिग्मा 1 - सिग्मा 2/2 इक्वल टू ब्रैकेट सिग्मा 1 + सिग्मा 2/2 साइन फाई प्लस सी कॉस फाई. फिर सिग्मा 2 - सिग्मा 3/2 इक्वल टू सिग्मा 2 + सिग्मा 3/2 साइन फाई
प्लस सी कॉस 5, फिर सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 अपॉन 2 साइन 5 प्लस सी कॉस 5। तो यहाँ दे सकते हैं 1 प्लस 2, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 1। द Mohr-Coulomb failure surface is a cone of hexagonal cross section in a derivative stress space। तो Mohr-Coulomb failure surface हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग बात करते हैं इक्वेशन की। तो इसको एक्सप्रेशन को टाउ एंड सिग्मा को जनरलाइज हम 3 डायमेंशन by developing expression for the nominal stress and the resolved shear stress on a plane of arbitrary orientation with respect of coordinate axis, or if the unit nominal is a plane of interest n is equal to n1 e1 plus n2 e2 plus n3 e3, और where i is equal to वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1 2 3 are the ortho normal unit basis vectors and the principal stresses are sigma 1 sigma 2 and sigma 3। प्रिंसिपल स्ट्रेस से ध्यान रखिए दोस्तों, प्रिंसिपल स्ट्रेस से सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 आर अलाइंड विद द बेसिस, और जो वेक्टर है वो e1 e2 और e3 है। देन द एक्सप्रेशन इज सिग्मा कॉमा टाउ इज सिग्मा इक्वल टू n1 का होल स्क्वायर सिग्मा 1 प्लस n2 का होल स्क्वायर सिग्मा 2 प्लस n3 का होल स्क्वायर सिग्मा 3, एंड द टाउ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 सिग्मा 1 का होल स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस n3 सिग्मा 3 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ इसको ओपन आउट कर दिया और यहाँ पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो जो Mohr-Coulomb failure criteria कैन बी evaluated using the usual expression that is tau is equal to sigma 10 phi plus c for the 6th plane of maximum stress। कितना 6th plane for the maximum stresses। यहाँ पे आपका these are the basic formula। यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे दे सकते हैं डायग्राम, that is your representation of diagram figure 2, that is Mohr-Coulomb yield surface in the pi plane, Mohr-Coulomb yield surface in the pi plane जहाँ पर c की वैल्यू 2 है और phi की वैल्यू कितनी दी है 20 डिग्री। फिगर 3 में आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रेस द Mohr-Coulomb yield surface sigma 1 minus sigma 2 that is plane for c is equal to 2 and phi is equal to 20 डिग्री। Mohr-Coulomb failure surfaces in Hedges Wastig space, और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर हमारी इक्वेशंस बनती है सिग्मा 1 सिग्मा 3.2 सिग्मा प्लस सिग्मा 3.2 एंड इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात करते हैं अगर Mohr-Coulomb yield एंड प्लास्टिसिटी की, तो Mohr-Coulomb yield surface is often used to model the plastic flow to geomaterials। Many such materials shows dilations behavior under triaxial stress state of stress, which the Mohr-Coulomb model does not include. Also, since the yield surface has corners, it may be inconvenient to use the original Mohr-Coulomb models to determine the direction of plastic flow, that is flow theory of plasticity। आगे हम बात करते हैं कि जो कॉमन अप्रोच है नॉन एसोसिएटेड प्लास्टिक फ्लो का, पोटेंशियल इज स्मूथ एंड एग्जांपल ऑफ सच पोटेंशियल इज फंक्शन इज जी इक्वल टू अल्फा सी वाई 10 साइन का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 5 सिग्मा 5 थीटा क्यू स्क्वायर माइनस पी 10 थीटा, जहाँ पर सिग्मा क्या हमारा पैरामीटर है और सी वाई हमारा क्या इज द वैल्यू है सी की, जहाँ पर जब प्लास्टिक स्ट्रेन जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। कब हो जाएगा? ऑल्सो कार्डिक कंडीशन इनिशियल कोजन यील्ड स्ट्रेस एंड साई इज द एंगल मेड बाय द यील्ड सरफेस इन द रिनुडिक प्लेन एट हाई वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर कितना एंगल कोएफिशिएंट एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो रॉक के लिए यहाँ पर कोसिव स्ट्रेंथ दिया है आपका 10,000 और कोसिव स्ट्रेंथ इन PSI में दिया है। यहाँ पे सकते हैं रॉक, स्लिट क्ले, वेरी सॉफ्ट क्ले, मीडियम क्ले, स्टिफ क्ले, वेरी स्टिफ क्ले, हार्ड क्ले, एंड देयर ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया है यहाँ पर। रॉक का दिया 30 डिग्री, सैंड का दिया 30 to 45, ग्रेवल 35 डिग्री, स्लिट 26 to 35 डिग्री, क्ले 20 डिग्री, लूज सैंड 30 to 35 डिग्री, मीडियम सैंड 40 डिग्री, and Dan said this. So this one your known as modified Coulomb failure criteria.